students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and we will be taking up the complete chapter concept along with MCQs. Topic for this lecture is states of matter, and from this chapter in this video we will be discussing about the real gas equation, that is the van der Waals equation. And let's start the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. Alright. So in the previous lectures on the same chapter, we have learnt about the ideal gas PV is equal to nRT and various units of R. Apart from that, kinetic molecular theory and different types of velocities, Maxwell-Boltzmann distribution curve of velocities, effect of temperature on velocities, all that we have already discussed in the previous videos. Now in this video we will be taking up the comparison between a real gas and an ideal gas. I mean to say whether the gases are following those results which we have discussed in the previous lectures. PV is equal to nRT is practically being followed or not. So you will find out that none of the gas is ideal gas practically. H2, carbon dioxide, methane, कोई भी गैस 100% कंडीशंस में PV is equal to nRT को फॉलो नहीं करता है. तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यूज. एज अ रिजल्ट वी हैव टू सी द cause of deviation and we have to see the correction which was given by the scientist van der Waals, how it was applied and how the equation has been modified, right? So let's start our session with the first slide. First of all, we have slide number 1, the ideal gases, real gases and compressibility factor. Look here, a gas that obeys gas laws and it obeys all the postulates of kinetic theory under all conditions of temperature and pressure is called ideal gas. Ideal gas उसको कहना है जो सारे postulate kinetic theory के follow करे, सारे gas laws को follow करेगी और all temperature, all pressures पे. It is called as ideal gas and it cannot be liquefied. Ideal gas को हम liquefy नहीं कर पाएंगे. In actual practice an ideal gas is a myth. Actual practice में कोई भी gas आइडियल गैस नहीं है. तो क्यों नहीं है? द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स आर नॉट ओबेड बाय एनी गैस. कौन कौन से दो पोस्टुलेट किनेटिक थ्योरी के हमने 6-7 पोस्टुलेट्स करे थे, उनमें से फर्स्ट वन ये है, देयर एग्जिस्ट नो अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. हम सोचते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है. ये असम्पशन तो था थ्योरी का कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस among the gases are negligible. Intermolecular forces are negligible. ऐसा हमने assume किया था but ये wrong है. ये जो assumption है इसकी वजह से गलत गलत results आते हैं. Second point, molecules of gases are so small that their actual volume is negligible as compared to the occupied volume. Molecule का size छोटा है और हमने उसके molecules का volume ignore कर दिया according to the theory. But प्रॉब्लम कहां पे आती है आप ये देखिए, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड एंड लो टेम्परेचर इज अप्लाइड. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का कंडीशंस अगर हम देते हैं तो ये दोनों की दोनों assumptions प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, ये फेल हो जाती हैं. वी हैव दिस सिचुएशन. अर्लियर द प्रेशर वाज लो प्रेशर पे ये इतना बड़ा वॉल्यूम था वेसल का. फिर हमने कर दिया प्रेशर कम. जब प्रेशर कम किया, प्रेशर तो लो ही था, सॉरी पहले से ही लो था ना, फिर हमने प्रेशर हाई कर दिया. हाई प्रेशर से ये देखिए अगर ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं, सिचुएशन क्या आती है कि हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं. कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. अब इतने से वॉल्यूम में गैस है, राइट. आफ्टर अप्लाइंग हाई प्रेशर क्या सिचुएशन बनता है? वॉल्यूम डिक्रीजेस बट मॉलिक्यूल्स का नंबर तो डिक्रीज नहीं होगा. मॉलिक्यूल तो उतने के उतने ही रहेंगे. अब सारे मॉलिक्यूल्स को इस जगह में एडजस्ट होना है. जब इस जगह में वो एडजस्ट होते हैं तो फिर उनके अंदर के बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं. पहले तो दूर दूर थे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं थी, अब वो पास आ गए हाई प्रेशर लगाने से, तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई. एज अ रिजल्ट अब आपके पास ये वॉल्यूम है, ये जो लेफ्ट पे लगा रहे हैं हम, ये वॉल्यूम है गैस का और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अब इग्नोर नहीं हो सकता क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है.
राइट। तो दूसरी बात, लो टेम्परेचर पे भी ये प्रॉब्लम आती है। जब हम सिस्टम को कूल कर देते हैं, हम कुछ प्रेशर नहीं लगा रहे, सिर्फ कूल कर रहे हैं, कूल करने पे भी ये प्रॉब्लम आता है कि मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता। हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, लो टेम्परेचर पे लो होता है। व्हेन दे हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, then they don't move apart from each other, they try to stay close to each other. When they are closer to each other, they will make bonds and that bond is creating a problem. Intermolecular interactions जो create होती हैं उससे problems आती हैं, right? So ये आपका हुआ फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि आइडियल गैस प्रैक्टिकली कोई भी नहीं है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, PV इज इक्वल टू NRT फॉलो नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये रिजल्ट्स आपको दिखाए, राइट। सो PV इज इक्वल टू NRT में क्या होता है, PV या तो NRT से बड़ा आता है और या ये उससे छोटा आता है। तो इस सिचुएशन में, दोनों सिचुएशंस में हम इसको रियल गैस बोलते हैं, आइडियल गैस नहीं बोल सकते। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो देखिए, अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड एज अ रिजल्ट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बॉयल्स लॉ का कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। एट फिक्स टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V इज कांस्टेंट। तो ये देखिए, ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं, PV वर्सेस P प्लॉट करते हैं, तो देयर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बट ये तो सिर्फ आइडियल गैस के लिए आ रहा है। अब आपको इस ग्राफ में दिखा रखा है कि सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही आता है, मतलब थ्योरेटिकली PV इज इक्वल टू P का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब थ्योरेटिकली हमने ड्रॉ कर दिया। अब गैसेस ली गई, हीलियम, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, किसी के लिए भी Z जो PV वर्सेस P कर्व है स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैन यू सी, यहाँ पे प्रेशर लो है, ये बिगनिंग में लो प्रेशर, दिस इज दी लो प्रेशर रेंज, और इधर राइट को आते हैं तो हाई प्रेशर रेंज है। लो प्रेशर पे नेगेटिव डिविएशन दिख रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है गैसेस का कि जब जब प्रेशर लो है तो नेगेटिव डिविएशन। एट लो प्रेशर वी हैव नेगेटिव डिविएशन। जब प्रेशर इंक्रीज होता है, हाई प्रेशर बनता है, तो पॉजिटिव डिविएशंस। पहले लाइन को क्रॉस करती हैं गैसेस, ये जो लाइन है ये है PV का स्ट्रेट लाइन, उसको क्रॉस करने के बाद फिर वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रही है। आई कैन ड्रॉ इट अगेन, ये देखो ये सिचुएशन है। लो प्रेशर रेंज में यू कैन सी फ्रॉम हियर, लो प्रेशर रेंज मींस नेगेटिव डिविएशन, लाइन नीचे को आ रही है। बट H2 और हीलियम में ऐसा नहीं होता है। H2 हीलियम में तो हमेशा ही पॉजिटिव डिविएशन है, चाहे वो लो प्रेशर हो चाहे वो हाई प्रेशर हो। सो इन दिस मैनर ग्राफ आपको दिखा रहा है कि हमारे पास एक भी गैस का PV इज इक्वल टू PV वर्सेस P ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। नेक्स्ट राइट साइड पे एक और ग्राफ दिया है, इसमें रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम से दिखाया जा रहा है। दिस इज प्रेशर एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड अगर इनवर्स का ग्राफ आना चाहिए तो ये ग्राफ का शेप होना चाहिए। बट सिचुएशन क्या है कि इनवर्स का ग्राफ तो आ रहा है बट रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस से कोइंसाइड नहीं कर रहा। यू कैन सी, जब जब लो प्रेशर है, ये बिगनिंग में लो प्रेशर, सॉरी यहां पे है वॉल्यूम इस एक्सिस पे, और ये है लो प्रेशर, राइट, दिस इज लो प्रेशर। ऊपर चलते हैं, ये हाई प्रेशर हो गया। लो प्रेशर जब तक था ये ग्राफ फिर भी कोइंसाइड करते थे, पर जब हाई प्रेशर हुआ तो ये डिफरेंस दिख रहा है। रियल गैस is following a behavior which is different from the ideal gas, right? We can mention here at low pressure the two curves, दोनों के दोनों जो curves हैं they coincide each other, the two curves coincide each other, behavior is as expected, but at high pressure real volume is greater than the calculated volume. रियल वॉल्यूम मतलब रियल गैस का वॉल्यूम, ये है आपके पास रियल गैस का वॉल्यूम, ये टिक किया हुआ है रियल गैस के लिए। हम इसको ब्लैक लाइन से अगर शो करें
तो लेट्स टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर प्रेशर। उस पर्टिकुलर प्रेशर पे रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल से, आइडियल गैस से डिफरेंट आ रहा है। समझ लो कि ये लेट्स कॉल इट 1 लीटर, तो ये 1.3 लीटर के करीब है। तो वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, डेविएशंस ज्यादा होती हैं। इसका क्या मीनिंग है? एट हाई प्रेशर डेविएशंस आर मोर, राइट। तो एक हम टर्म डिफाइन करते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयल्स टेम्परेचर का सिंबल है TB। इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस, वी कैन राइट टेम्परेचर एट विच real gas obeys ideal gas laws. It obeys ideal gas laws for an appreciable range of pressure. उसको बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर का सिंबल है TB एंड इट इज रिलेटेड टू वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। इट इज इक्वल टू A/RB। हर गैस का बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग होगा, वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स A और B के साथ इस तरीके से रिलेटेड है। ये वो टेम्परेचर है जब गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी फॉर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर हाई कर देंगे, बहुत हाई कर देंगे, तो डेविएशंस जरूर आएंगी, राइट। सो इस ग्राफ से आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। द टर्म कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z बोला जाता है। The extent of deviation of a real gas from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor Z, and Z is given as PV upon nRT. PV upon nRT का रेशो है, और ये रियल गैस का जो वॉल्यूम है उसको अगर हम आइडियल गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करें, I mean to say Z can also be defined as volume occupied by the real gas as compared to volume occupied by the ideal gas, right? रियल गैस का मतलब होता है एक्चुअल, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने पे जो वॉल्यूम आ रहा है। आइडियल गैस का मतलब है कैलकुलेट करने पे जो वॉल्यूम आ रहा है। इसको कैलकुलेटेड या फिर इसको थ्योरेटिकल वॉल्यूम भी कहते हैं, और ये आप PV इज इक्वल टू nRT से कैलकुलेट करते हो। पर जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से PV इज इक्वल टू nRT को हम कुछ प्रेशर का वैल्यू डाला, टेम्परेचर का वैल्यू डाला, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू डाला। लेट्स से कि वॉल्यूम आता है कैलकुलेशन के बाद 20 लीटर्स। अब आप वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही नंबर ऑफ मोल्स लेके एक्सपेरिमेंट करते हो तो 20 आना चाहिए, बट 20 नहीं आता है। It is coming maybe less than 20 or it is coming more than 20. Then it is called as the different value. रियल गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकल जो गैस का वॉल्यूम है वो कैलकुलेटेड से मैच नहीं करता, तो इस रेशो को Z कहते हैं। और Z को डिफाइन करने का ये भी मेथड है PV अपॉन nRT। वी विल बी गेटिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें आपको प्रेशर, वॉल्यूम दिए हैं, टेम्परेचर दिए हैं और आप Z कैलकुलेट करोगे। आगे देखो, फॉर आइडियल गैस Z इज 1, बट फॉर रियल गैस Z या तो 1 से बड़ा है और या फिर 1 से छोटा है। वी कैन राइट लाइक दिस, इफ यू हैव PV is equal to nRT, then automatically Z will be 1. But if PV is greater than nRT, then Z is greater than 1. PV is greater than nRT का क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम है रियल गैस का, इट इज कमिंग मोर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मीनिंग है कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग इन द गैस मॉलिक्यूल्स। रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं। बट अगर ये सिचुएशन आ जाए कि Z इज लेस देन 1 समझ लो, तो PV विल बी लेस देन nRT। As a result, volume of real gas will be less than the ideal volume. Ideal volume 1 मोल का 22.4 लीटर है at STP conditions, but STP conditions प्रोवाइड करने पे 22.4 नहीं आ रहा है। तो उसका क्या मीनिंग निकलता है कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 से कम क्यों आ रहा है? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये आपको नोट करना है, Z
लेस देन 1 है तो उसका क्या इन्फ्रेंस निकलता है, जब z ग्रेटर देन 1 है तो उसका क्या इन्फ्रेंस निकलता है, और हम इनको डेविएशन के अंडर जो केसेस हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक पॉजिटिव z ग्रेटर देन 1 में और एक लेस देन 1 में, राइट। सो इन दिस वे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ रियल गैस। वंडर वॉल इक्वेशन दी गई थी 1873 में। 1873 मतलब ये बहुत साल पहले की जो इन्वेंशन है। अब कंडीशंस कैसे मेंटेन करी जा रही हैं, द नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी करेक्शंस टू वॉल्यूम एंड प्रेशर पार्ट इन द आइडियल गैस इक्वेशन वर मेड बाय वंडर वॉल एंड ही मॉडिफाइड द इक्वेशन एज फॉर 1 मोल इट इज P प्लस A अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिए PV में से जो P था उसको चेंज कर दिया, उसमें A अपॉन V स्क्वायर ऐड कर दिया, और वॉल्यूम में भी चेंज आया, V माइनस B कर दिया, इट इज इक्वल टू RT। सिमिलरली 1 मोल के बाद n मोल्स के लिए ये मॉडिफिकेशन है। किस तरह से ये इक्वेशन आती है अब वो देखते हैं। प्रेशर करेक्शन वॉज अप्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज वंडर वॉल। प्रेशर के ऊपर करेक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल असम्पशन है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं तो इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। सो द प्रेशर विच वी ऑब्जर्व, pressure which we observe is less than the actual pressure, is less than the actual pressure because molecules are striking the wall with less momentum. They are striking the wall with less momentum. अगर वो ठीक से स्ट्राइक नहीं करता है तो अपने आप से प्रेशर जो है वो कम हो गया। देखिए हम अगर ऐसा समझ लें कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है वेसल में, वो जाके वॉल पे जोर से स्ट्राइक करेगा। अब दूसरे सिचुएशन में उस मॉलिक्यूल को पीछे कोई ड्रैग कर रहा है, ऑब्वियसली जब पीछे कोई पुल कर रहा है तो वो वॉल के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं दे पाएगा जितना अगर वो अकेला होता, या कह लो अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ना होते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होती तो प्रेशर ज्यादा होता। बट अब क्या सिचुएशन है, अब हम जो प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं इट इज लेस देन द एक्चुअल प्रेशर, राइट, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, because of intermolecular interactions pressure is less। तो क्या सिचुएशन आ रही है कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है इट इज लेस देन द आइडियल प्रेशर। तो फिर प्रेशर पे करेक्शन लगाई गई। आइडियल प्रेशर क्या होगा, इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस सम प्रेशर करेक्शन। ये जो स्मॉल p लिखा है दिस इज कॉल्ड एज pressure correction, and the scientist van der Waal has proved that this pressure correction is directly proportional to square of density of the molecules। और उसका स्क्वायर लेना है। सैंपल में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है तो आपस में भी ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, और वॉल के ऊपर जो कोलिजन होगी उसके भी ऊपर भी असर आएगा, तो डेंसिटी का स्क्वायर लेना है। P is directly proportional to density मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। गैस में डेंसिटी को हम ऐसे लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये। इट इज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड P इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिप्लेस कर दिया हमने A से, दिस A इज कॉल्ड एज वंडर वॉल्स कांस्टेंट। ये हर गैस का अलग अलग है, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात की ए हमें क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में ए बताता है, वो पता होना चाहिए। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इसको हम हाईलाइट करते हैं, मेन बात है ये। फिर आता है आप इसके अगर यूनिट्स देखेंगे तो ये बनेगा P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए बन गया इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इट इज एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ ए। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम पे भी करेक्शन लगाई गई, वॉल्यूम को भी वी
की जगह V माइनस NB कर दिया। ये जो NB है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड B इज द वॉल्यूम करेक्शन। ये जो B है इसको को वॉल्यूम भी कहा जाता है और इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है। ये जो B है इट इज 4 times the volume occupied by molecules in 1 mole. It is equal to, देखो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 1 मोल के मतलब वैल्यू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का 4 गुना है ये। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कहने का मतलब मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो PV इज इक्वल टू nRT की जगह प्रेशर में हम लिख रहे हैं P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और वॉल्यूम के अंदर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। दिस इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना पड़ा। पहले तो एज्यूम कर लिया था कि मॉलिक्यूल्स कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। वो तब ट्रू होता है जब प्रेशर लो रखो। हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और फिर वेसल का भी मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है, वेसल का वॉल्यूम कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते और फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया गया यहां से। और सेकेंडली अपने स्पेस जितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा जगह लेते हैं क्योंकि मूव भी तो करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अब B के यूनिट्स हैं लीटर पर मोल। वैन डर वाल कांस्टेंट B लीटर पर मोल है और वैन डर वाल कांस्टेंट जो A था उसके यूनिट्स थे एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। सो दिस इज द डिटेल ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। नेक्स्ट आता है स्लाइड नंबर 5, वैन डर वाल इक्वेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे क्या सिचुएशन है। जब हाई टेम्परेचर होता है बहुत, एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम लार्ज रहेगा तो A और B को आप इग्नोर कर सकते हो। तो देखिए हमारी इक्वेशन ये थी P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब यहां पे अगर A भी इग्नोर हो जाए, ये A हटा देना है और B भी हटा देना है, A भी 0 B भी 0, तो बस इक्वेशन ये रह जाएगी ना फिर तो PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज एट हाई टेम्परेचर। और लो प्रेशर पे भी ऐसा ही होता है। लो प्रेशर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A और B को इग्नोर कर सकते हो। लो प्रेशर पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि वेसल का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। Vessel is quite big in size, then volume occupied by the molecules is ignorable. As a result, आपके पास PV is equal to nRT ideal equation आ जाएगी। अब C point देखिए, C is very important when high pressure is applied. उसके बाद क्या होता है? जब प्रेशर हाई है तो आप अपनी इक्वेशन में B dominates A at high pressure। ये देखो जितना हाई प्रेशर होगा उतना मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनेंगे। A को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट P प्लस A इज अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी P बिकॉज ये जो प्रेशर है इट इज वेरी हाई। एट हाई प्रेशर आप फिर A को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ऑफ वेरी हाई वैल्यू ऑफ P। तो अब हमारी इक्वेशन में अगर हम A को ही हटा दे तो ये बन जाता है V माइनस B इज इक्वल टू RT, बट मैंने N को 1 ले लिया है, 1 मोल के लिए लिखेंगे। यू विल गेट PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। लेट्स डिवाइड बाय RT ऑन बोथ साइड्स। ये PV अपॉन RT बन जाएगा अगर हम RT से डिवाइड कर देंगे, एंड द रिजल्ट इज Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। Z इज ग्रेटर देन 1। तो जब जब ये होगा हाई प्रेशर तो इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। वैन डर वाल इक्वेशन का ये रूप हो जाएगा जिसमें कि Z इज ग्रेटर देन 1 प्लस समथिंग। कब होगा ये? हाई प्रेशर के ऊपर। लास्ट सिचुएशन में दिया है एट मॉडरेटली लो प्रेशर। बहुत लो नहीं है, जब बहुत लो होता है फिर तो PV इज इक्वल टू nRT आ जाता है। अब मॉडरेट प्रेशर पे B कैन बी निग्लेक्टेड। लास्ट सिचुएशन पे देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज होके वैन डर वाल कैसे बनती है। व्हेन इट इज सेड दैट मॉडरेट प्रेशर इज अप्लाइड, तो आपने B इग्नोर कर दिया। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम फिर इग्नोर हो सकता है अगर प्रेशर मॉडरेट है। तो इक्वेशन में बस A को रखेंगे और हमने N को भी 1 ले लेना है, B को हटा दिया, N इज इक्वल टू 1।
तो बना PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT. लेट्स डिवाइड बाय RT ऑन बोथ साइड्स. PV अपॉन RT plus A upon VRT is equal to 1. Therefore, Z is equal to 1 minus A upon VRT. मतलब Z is less than 1. Z less than 1 मतलब गैसेस में मॉडरेट प्रेशर पे नेगेटिव डिविएशन आएगी, और वो आपने बिल्कुल बिगनिंग में देख लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिविएशंस आती हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो डेविएशंस पढ़ने के बाद ये पता चला हाई प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर नहीं आता है और लो टेम्परेचर पे भी नहीं आता. आइडियल बिहेवियर नहीं आता तो आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, आप गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड हम ये दो कंडीशंस प्रोवाइड करें. दीज आर नंबर 1 हाई प्रेशर एंड नंबर 2 लो टेम्परेचर, राइट. अब क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स आते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. Higher is the critical temperature, easier is the liquefaction, and TC for carbon dioxide is given. मतलब कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है लेट्स से 15 डिग्री, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है अबव विच लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. मतलब आपको उसको 15 डिग्री तक कूल करना ही पड़ेगा. हमारे पास गैस है रूम टेम्परेचर पे समझ लो 25 डिग्री पे, और उस गैस का क्रिटिकल कांस्टेंट है 15. हमें कूल करते हुए अगर हम 16 पे आ जाते हैं, पहले हम 18 पे अचीव किया 18 डिग्री टेम्परेचर, फिर लिक्विफिकेशन नहीं हो पाई, उसके बाद कूल और किया, टेम्परेचर 16 आ गया, नो लिक्विफिकेशन. 15 पे जब आएंगे तभी लिक्विफिकेशन होगा. बस अबव 15 लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. डेफिनेशन में हमें ये बातों का ध्यान रखना है. अबव कैन नॉट बी लिक्विफाइड, राइट. और उससे नीचे तो बहुत अच्छा है, अगर समझ लो टेम्परेचर 14 कर दिया, 12 कर दिया, देन द लिक्विफिकेशन विल बी इजी. इज इट क्लियर? Next we have critical pressure. It is the pressure required to liquefy a gas at critical temperature. Critical pressure मतलब हाई प्रेशर देने पे ही लिक्विड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का वो 73 एटमॉस्फेयर है, विच इज अ क्वाइट हाई वैल्यू. Critical volume, it is the volume of 1 mole of the gas at critical temperature and pressure, and कार्बन डाइऑक्साइड का critical volume भी दिया है और important results दिए हैं. Critical pressure होता है A अपॉन 27B स्क्वायर. मतलब वंडरवॉल कांस्टेंट A और B के साथ इक्वेशन कैसे ज्वाइन करना है, A अपॉन 27B स्क्वायर. क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A अपॉन 27RB, एंड क्रिटिकल पैरामीटर्स पे PV इज इक्वल टू nRT मॉडिफाई हो जाती है. PC is critical pressure, VC is critical volume, TC is critical temperature. It is equal to 3/8R. याद रखना है. और एक important result, critical volume is equal to 3B. B is the van der Waals constant B, which is called as excluded volume. So, after the discussion of these points regarding ideal gas equation and liquefaction, we are coming to the questions now. First question is, a gas will approach ideal behavior at, options are low temperature and low pressure, low temperature and high pressure, high temperature, low pressure, और high temperature and high pressure. So, अभी हमने देखा है कि आइडियल बिहेवियर कब आता है. क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट आइडियल बिहेवियर. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1999 IIT में पूछा गया. आइडियल बिहेवियर आएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर. एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जब हम ये दो कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी हाई. जब वॉल्यूम हाई होगा तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप इग्नोर भी कर पाओगे. ये सिचुएशन है, इतना बड़ा वेसल है विद वॉल्यूम V एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस. तो हमें बहुत इजिली PV इज इक्वल टू nRT वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आइडियल बिहेवियर मिलता है. और अगर उल्टा कर दिया जाए कि समझ लो टेम्परेचर कर दिया लो और हाई प्रेशर कर दिया, फिर डेविएशंस आएंगी. बट हमारे इस क्वेश्चन में आइडियल बिहेवियर पूछ रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP. Z is less than 1.
then options are molar volume will come out to be 22.4 और greater than और less than. आपको Z less than 1 दिया है, तो Z देखो क्या होता है, PV upon RT is called as Z, इसमें मैंने N को तो 1 मोल ले लिया, PV upon RT is coming out to be less than 1, मतलब वॉल्यूम इज लेस देन P upon RT. आप प्रेशर का वैल्यू पुट करिए 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री जो कि 273 केल्विन है, R का वैल्यू 0.0821. ऐसा करने से गैस का वॉल्यूम 22.4 आना चाहिए बट नहीं आएगा, इट विल कम आउट टू बी लेस देन 22.4, राइट. तो हमारे को पूछा जा रहा है कि जब Z कंप्रेसिबिलिटी अगर यूनिटी से कम है तो क्या वॉल्यूम 22.4 आएगा, आंसर है नो, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो Z होता है इट इज द वॉल्यूम ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एज कंपेयर टू आइडियल गैस. Z इज लेस देन 1 का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. आइडियल का वॉल्यूम तो 22.4 होता है 1 मोल का, तो इट विल बी लेस देन 22.4 लीटर्स. तो दो तरीके हैं, Z की दो डेफिनेशंस थी, हमने दोनों से प्रूव कर दिया, आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 8.5 gram ammonia contained in 0.5 liter vessel at 300 Kelvin and A and B are given for ammonia gas. अमोनिया का वंडरवॉल कांस्टेंट A और B दोनों दिए हैं, उनके यूनिट्स आप चेक करिए, आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है. लेट्स अप्लाई द इक्वेशन P plus AN square upon V square into V minus NB is equal to nRT. सो 8.5 ग्राम अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, तो 0.5 मोल अमोनिया इज ऑलरेडी गिवन टू यू. हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है और बाकी पैरामीटर्स, A की वैल्यू दी है 4 एंड दिस इज 0.5 मोल. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 0.5, इसका भी स्क्वायर हो गया, एंड इन द अदर ब्रैकेट we will write 0.5 minus N is again 0.5 and B का वैल्यू 0.036. This is equal to 0.5 into R. R कितना है, प्रेशर जब एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो R लेना है 0.0821. टेम्परेचर इज गिवन टू बी 300 केल्विन. क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं 300 प्रेशर टेम्परेचर दिया है. तो आपके पास फाइनली कुछ कुछ पैरामीटर्स कट रहे हैं एंड द वैल्यू फॉर प्रेशर विल कम आउट टू बी 21.51 एंड इट इज इन एटमॉस्फेयर. 21.51 का मतलब ए ऑप्शन आंसर. तो इन दिस वे वंडरवॉल इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट. द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द रियल वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज. This was asked in 2010. IIT में पूछा गया Z का वॉल्यूम की टर्म्स में क्या डेफिनेशन है. हमारा आंसर है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस. तो रियल अपॉन आइडियल मतलब ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम. तो हमारा ये बनेगा सी ऑप्शन आंसर. बी केयरफुल, इसमें बी ऑप्शन में तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ए में ऑपोजिट डेफिनेशन दे दिया, डी में माइनस कर दिया, तो आपका आंसर सी है. नंबर 5 नाउ. 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 मिलीलीटर्स एट 300 केल्विन एंड प्रेशर इज 50 एटमॉस्फेयर. आपको ये वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सब दिए. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज, Z होता है PV अपॉन nRT. इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड वी हैव 1 मोल एंड प्रेशर के लिए दिया 50 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए दिया है 350 लीटर. मिलीलीटर है तो लीटर बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ताकि ये लीटर्स बन जाए. और नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू देखो, वो है 1 मोल. R का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 300 Kelvin. You can see from here 300 Kelvin is the temperature. So Z will be equal to 0.71. 0.711 means answer is A option. It was a question on Z calculation. Other parameters were given. Pressure, volume, sulfur dioxide गैस के लिए था, but units के लिए careful रहना है.
और आर के यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फेयर, लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर के यूनिट्स हैं केल्विन और प्रेशर के हैं एटमॉस्फेयर, राइट। तो Z विल हैव द वैल्यू ऑफ 0.0711। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। फॉर द नॉन जीरो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स द रियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल विल बी। नॉन जीरो वॉल्यूम, ये कंडीशन दी है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉन जीरो है, मतलब B इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप B को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको B रखना पड़ेगा। इक्वेशन ये थी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम B को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, A को जीरो करिए और आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अपनी ऑप्शंस देखो, कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें A और B दोनों दिए जाएं। या तो फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें तो A रखा है, सेकंड देखें तो B रखा हुआ है, थर्ड में भी B रखा हुआ है। A और B दोनों तो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो हमें, और ये साथ में बोला है कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नॉन जीरो है, मतलब B इज नॉट जीरो। अब आप ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट खोलते ही n को 1 ले लेते, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। लेट्स टेक n1, नहीं n को 1 मत लो क्योंकि ऑप्शंस ने n1 नहीं किया, तो n को रखना पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई विद n। लेट मी राइट इट क्लियरली अगेन। वी हैव PV माइनस NPB इज इक्वल टू nRT। लेट्स डिवाइड बाय Z नाउ। उस Z RT से डिवाइड करते हैं अगर Z बनाना हो, बट अब हमें यहां तो Z बनाना ही नहीं है, हमारे पास ये आंसर आ चुका है। P को कॉमन लेते हैं, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। दिस इज नथिंग बट अवर C ऑप्शन। ये पूरा C ऑप्शन चेक कर लो, it is matching here and it is nothing but the same as B option also. B option में क्या लिखेंगे? You can also write PV is equal to nRT plus this. Let's open the bracket, ये PNB बन जाएगा। अब इसको राइट पे ले जाओ तो ये B ऑप्शन, PV is equal to nRT plus NBP। इन दिस मैनर हमारा आंसर है B और C दोनों ठीक है, बोथ आर करेक्ट। तो D option is the correct answer, right? Moving to the next question, another question on van der Waals equation again. For the non-zero value of force of attraction between the gas molecules, the gas equation will be non-zero value of force of attraction, मतलब कि A, force of attraction के लिए van der Waals constant A है, A is not equal to zero and A और B दोनों इकट्ठे तो किसी ऑप्शन में नहीं है, B will be zero। Volume occupied by the molecule is ignorable। आपने B को हटा देना इक्वेशन में से, ये बनेगी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, और रादर एन आर टी। हमने B को कर दिया है जीरो। अब आप ब्रैकेट खोल लो, इट विल बी पी वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एन आर टी, and we can write PV is equal to nRT minus AN square upon V, which is option A। बाकी ऑप्शंस में तो B रखा है, इसमें आइडियल बिहेवियर दिया है C में, तो हमें नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेना था। A is not equal to zero। Let's come to the next question now, question number 8। Arrange the van der Waals constant A for the gases। 1994 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, van der Waals कांस्टेंट A पता करना है, वैल्यूज आर गिवन, एक कंपैरिजन करना है बेंजीन, टॉल्यूइन, नियोन एंड वाटर के लिए। तो देखिए जो A है, इट इज A का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ A इज इट इंडिकेट्स द magnitude of intermolecular forces। intermolecular forces या intermolecular bonds के बारे में बताता है ये, राइट? तो अब चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस में हमें दे रखा है नियोन, वाटर। तो नियोन एक नोबल गैस है, उसके अंदर बॉन्ड्स नहीं बनेंगे इजीली, उसका van der Waals कांस्टेंट है सबसे कम वैल्यू होगी। सबसे कम वैल्यू चेक करो कहां पे है, दिस इज
0.217 सबसे छोटा, 0.217 जो है इसको नियॉन से मैच कर देते हैं। आफ्टर दैट यू विल हैव फॉर वाटर, वाटर का चेक करें, वाटर के लिए उससे बड़ी वैल्यू आएगी, वाटर का मास कम है एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर टू टॉल्विन। बेंजीन ये भी तो पता है ना, हायर इज द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज हाई, देन वंडरवॉल कांस्टेंट इज हाई। वंडरवॉल कांस्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को इंडिकेट करता है, अगर मास ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वंडरवॉल कांस्टेंट ए बढ़ जाएगा। तो वाटर के कंपैरिजन में देखो सब गैसेस हैं, वाटर और बेंजीन, और हमें टॉल्विन को कंपेयर करना है। बेंजीन एक्चुअली लिक्विड होता है बट यहाँ गैस दिया है, मतलब गैसियस स्टेट में आपने सब सैंपल्स को रखा है। सो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर नियॉन आएगी वाटर की। अब बेंजीन टॉल्विन में से टॉल्विन हैज द हाईएस्ट मास, तो हाईएस्ट वैल्यू है आपके पास ऑप्शन डी, और बेंजीन जाके मैच होगा 18 के ऊपर। एज अ रिजल्ट फर्स्ट का आ गया सी विच इज 18, सेकेंड इज टॉल्विन उसमें आ गया 24, और नियॉन एंड फिर वाटर, हमारा आंसर बनता है सी ऑप्शन। इज इट ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 1 mole of a van der Waals gas at 0 degree Celsius and 600 atmosphere occupies this volume and B is also given, find out Z। देखिए ये इक्वेशन में अब A नहीं है, इस क्वेश्चन में A जब नहीं होता तो इक्वेशन बन जाती है P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। N को आप ले लो 1 मोल, क्वेश्चन ने बिगनिंग में दे दिया N इज 1, तो ये PV माइनस PB, या ऐसे करते हैं अगर हम ब्रैकेट ओपन ना करें तो इजी रहेगा, इट विल बी P इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसको सीधा राइट पे ले जाते हैं विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट, V माइनस B। नाउ वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वैल्यूज हैं R इज 0.0821, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है कितना, 0 डिग्री, ये चेक करो, टेम्परेचर इज 0 डिग्री। आपको Z निकालना है तो ये बनेगा टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273, और वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम है 0.075, इट इज रिटन हेयर 0.075 लीटर्स माइनस B, इससे हमें प्रेशर पता चलेगा, और जब प्रेशर पता चलेगा तभी Z निकलेगा। इज इट ओके? सो ये प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेशन के बाद कितना आता है, 438.9 इट विल कम। बी पुट करना था, बी ये दिया है 0.024, 0.024, तो ये आ गया 438.9 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर आ रहा है, और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में प्रेशर आ रहा है 600 एटमॉस्फेयर। तो आप Z कैलकुलेट कर सकते हो, Z विल बी इक्वल टू 600 अपॉन 438.9, 1.367 Z का वैल्यू। इन दिस मैनर हमने Z कैलकुलेट किया बाय दी कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में प्रेशर कुछ और था, और हम इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो कुछ और है, इस रेशो से हमने Z कैलकुलेट किया। इट इज कमिंग आउट टू बी मोर देन 1 एंड 1.367। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The question is very important. It came in IIT JEE 2006. Refer to the figure given below. Which of the statement is wrong? For gas A is equal to 0 and Z will be dependent linearly on this. ये देखो ये है A गैस। A गैस में सब टाइम पे पॉजिटिव डिविएशन आ रही है, तो इसमें A इक्वल टू 0 मतलब स्मॉल a, एंड Z विल बी डिपेंडेंट लीनियरली ऑन प्रेशर। हम चेक कर लेते हैं, A को 0 कर देंगे गैस A के लिए। गैस A के ग्राफ में दिख रहा है कि हमेशा पॉजिटिव डिविएशन आ रही है। ये H2 और हीलियम का केस है, इतना लेस मॉलिक्यूलर मास है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बनते हैं, लेस मास लेस सरफेस एरिया। एज अ रिजल्ट वंडर वाल कांस्टेंट A को आप इग्नोर कर दो, इक्वेशन में ये बन जाएगा। हमने इसको N1 मोल ले लिया, मैंने A को हटा दिया है, सिर्फ B बचा इक्वेशन में से। PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। लेट्स डिवाइड बाय RT ताकि ये Z बन जाए। इट इज 1 प्लस PB अपॉन RT। अब ग्राफ में हमें क्या दिया था कि Z वेरीज लीनियरली विद प्रेशर, ये लिखा था, तो देख लो Z वेरीज लीनियरली, Z इज y एक्सिस एंड इट इज इक्वल टू mx। स्लोप अगर चाहिए तो वो है B अपॉन RT। दिस इज स्लोप। प्रेशर
हमने प्लॉट किया x एक्सिस पे और y हमने रखा z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर y एक्सिस पे। तो फर्स्ट इज करेक्ट, गैस के अंदर लीनियर बिहेवियर आ रहा है A गैस के लिए। सेकंड स्टेटमेंट B स्टेटमेंट है फॉर गैस B इज इक्वल टू 0 एंड Z विल लीनियरली डिपेंड अपॉन प्रेशर। अब B गैस के लिए देख लेते हैं। फॉर गैस B, इसने B के लिए क्या दिया है, B स्मॉल इज इक्वल टू 0। अब आप अपनी इक्वेशन में से A अपॉन वी स्क्वायर, N को भी मैंने 1 ले लिया और B को हटा दिया। चेक दोबारा कर सकते हो, क्वेश्चन ने कहा था B 0 लेना है, B ऑप्शन में कहा था B गैस के लिए। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, चेक करते हैं Z क्या बनता है, A अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। अब मुझे ये Z बनाना है तो हम आर टी से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, पी वी अपॉन आर टी Z बन जाएगा। A अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू आर टी, ओ सॉरी ये आर टी अपॉन आर टी 1 हो जाएगा, राइट। तो Z इज कमिंग 1 माइनस A अपॉन वी आर टी, ये आपका इक्वेशन बनता है इन केस ऑफ B गैस में जहां की नेगेटिव एक्सिस पे गैस आ रही है। सो Z विल लीनियरली डिपेंड अपॉन प्रेशर, ये गलत है, ये लीनियरली डिपेंड करता ही नहीं प्रेशर, तो इसके अंदर ग्राफ में दिख भी नहीं रहा है। लास्ट इक्वेशन अगर आप ग्राफ भी बनाओ तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सी स्टेटमेंट गैस सी के लिए, दिस इज गैस सी नाउ, ये वाली gas C is a real gas and we can find A and B if the intersection data is given, that is true। C गैस जो है रियल गैस है क्योंकि आइडियल गैस का तो स्ट्रेट लाइन आता है ना, Z इज इक्वल टू 1 आता है एंड यू कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन डेटा। अगर दिया इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है तो आप A और B की वैल्यू निकाल सकते हो। डी ऑप्शन, ऑल वंडरवॉल गैसेस विल बिहेव लाइक गैस C एंड दे गिव पॉजिटिव स्लोप। गैस सी की तरह ही बिहेव करती हैं, उनकी पॉजिटिव स्लोप कब आती है, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे तो आप गैस सी को देखो, पहले लो प्रेशर पे वो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है बट हाई प्रेशर पे वो पॉजिटिव एक्सिस पे आ गया। मतलब गैस कोई भी हो, जब प्रेशर बहुत हाई कर दिया जाएगा तो फिर पॉजिटिव डिविएशन आएगी। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर है बी ऑप्शन, बी इज रॉन्ग। गॉट इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। So question number 11 now. For 1 mole of a gas, van der Waals gas, when B is equal to 0 and temperature is 300 Kelvin, PV versus 1 upon V plot is shown below. The value of van der Waals constant A is. तो देखिए हमारी इक्वेशन में अब आपको B 0 करना है, B 0 कर देंगे, A को रखेंगे और N का वैल्यू 1 ले लेंगे। A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू आर टी, राइट। तो ऐसा करने से हमें पीवी वर्सेस 1 अपॉन वी लेके आना है। तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड बी को 0 करना है तो बेटर है इसी स्टेप में 0 कर देते हैं। बी को मैंने हटा दिया, राइट। ओपन द ब्रैकेट, यू हैव पीवी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। पीवी को रखिए लेफ्ट पे और ये बन गया राइट साइड पे माइनस ए अपॉन वी प्लस आर टी। वी हैव अ ग्राफ बिटवीन PV वर्सेस 1 अपॉन V, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये y एक्सिस पे ग्राफ में प्लॉट कर रखा है, चेक करो, y एक्सिस इज PV और x एक्सिस है 1 अपॉन V। तो इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाते हो तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan theta and it is equal to A. There is a straight line with a negative slope. आप ग्राफ में देख सकते हो स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। ये वंडर वाल कांस्टेंट ए चाहिए, हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। आप स्लोप की कैलकुलेशन करिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। पॉइंट्स देखो, एक पॉइंट है 1 अपॉन v का वैल्यू 2 और दूसरा वैल्यू है 3, इधर है 20.1 एंड द अदर वैल्यू इज 21.6। In this manner, if I write here 21.6 एक वैल्यू थी and 20.1 was the other one. This is 3 minus 2, you will get equal to 1.5. तो slope is nothing but A. Van der Waals constant A का वैल्यू it means जो slope है वो Van der Waals constant A है, तो आंसर is 1.5. You have your answer as option C. राइट। तो वंडर वाल इक्वेशन की अलग अलग सिचुएशंस हैं। आईआईटी 2012 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको
वंडरवॉल कांस्टेंट ए के लिए ग्राफ की हेल्प से स्लोप के कैलकुलेशन के थ्रू ए निकाला तुमने। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन 12, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड मोस्ट सुटेबली एट, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बिगनिंग में बताया था, इट इज द टेम्परेचर बिलो विच लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस, बिलो विच, अबव विच लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इसके नीचे लिक्विफिकेशन हो जाएगी, लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल। तो आपकी जो गैस है उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि समझ लो किसी गैस का टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हमें किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है, तो हमें एक्सपेरिमेंट में उसको 15 डिग्री से नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। एंड क्रिटिकल प्रेशर होता है प्रेशर above which liquefaction will take place, minimum pressure required for a gas to liquefy, तभी बॉन्ड्स बनते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। तो आपका आंसर है सी ऑप्शन, टेम्परेचर कम होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा। Coming to now question number 13th, the critical pressure PC and critical temperature TC of a van der Waals gas are given to us. Temperature and pressure हमें दोनों दे रखे हैं respectively. What is the magnitude of critical volume? जो भी हमें given है हम पहले वो नोट करते हैं। critical हमें pressure दे दिया, it is equal to 12.77 एटमॉस्फेयर। उसके बाद दिया है critical टेम्परेचर टीसी का वैल्यू है -240 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें 273 ऐड करो ताकि ये बन जाएगा केल्विन के अंदर 273.15 हम करते हैं, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 33 केल्विन। ठीक है, अब आप इक्वेशन एट क्रिटिकल पैरामीटर्स PV इज इक्वल टू nRT की जगह क्या बन जाता है, PV इज इक्वल टू 3/8 RT, बट PV क्रिटिकल प्रेशर, V क्रिटिकल वॉल्यूम और T क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब आप VC निकाल सकते हो, इट इज 3/8 RTC अपॉन PC। तो R का वैल्यू हमें 0.0821 लेना है एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ये है 33 केल्विन और क्रिटिकल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 12.77। क्रिटिकल वॉल्यूम निकल आएगा। हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज किया, PV इज इक्वल टू 3/8 RT एट क्रिटिकल पैरामीटर्स एंड द आंसर फॉर क्रिटिकल वॉल्यूम विल बिकम, इट विल बी इक्वल टू 0.0796 लीटर पर मोल। ये हमें पता है यूनिट्स थे लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसका यूनिट था केल्विन, इसका यूनिट था एटमॉस्फेयर। तो अल्टीमेटली लीटर पर मोल आपके पास बच गया है, मतलब हमारा आंसर बनेगा 0.0796 मींस ऑप्शन डी। तो इस तरह से लिक्विफिकेशन के लिए क्रिटिकल पैरामीटर्स चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ गैस ओबेइंग van der Waals इक्वेशन आर गिवन 30 डिग्री एंड 70 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली। its van der Waals constant B will be equal to, you have critical temperature TC 30 डिग्री दिया है एंड क्रिटिकल प्रेशर दिया है 73 एटमॉस्फेयर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, van der Waals कांस्टेंट B, और ये पता होना चाहिए क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3 टाइम्स ऑफ B। एज अ रिजल्ट पहले हम लिखेंगे इक्वेशन P इंटू V, इसको लिखोगे PCVC, PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC। लेट्स कैलकुलेट VC, VC को लेफ्ट पे रखो, बाकी सब पैरामीटर्स राइट पे जाएंगे। और टेम्परेचर था 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या मतलब है, 273 उसमें ऐड करिए, तो ये बनता है 3/8 इंटू R 0.0821, यहीं पे ऐड कर देते हैं 30 प्लस 273, दिस इज 303 केल्विन। Temperature is 303 and critical pressure is given 73 atmosphere. This will give you critical volume. Critical volume का जो वैल्यू आएगा वो 3 भी होता है। It is the total equation now, 3/8 into 0.0821 into 303 upon 73. Can I calculate B from here? 3 से डिवाइड करो, 3 बेटर है, 3 और 3 यहीं कट कर देते हैं। सो द आंसर फॉर बी विल बी 0.0425,
0.0425 मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली डी ऑप्शन 0.0428 दिया है, हमारे यहाँ 0.0425 आ रहा है. दिस इज द क्रिटिकल, दिस इज द वंडरवॉल कांस्टेंट बी जो कि क्रिटिकल वॉल्यूम से हमने कैलकुलेट किया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए फॉर इथाइलिन? यू आर गिवन टीसी एंड पीसी. अब निकालना है वंडरवॉल कांस्टेंट ए. पीछे तो वंडरवॉल कांस्टेंट बी निकालना था जो कि डायरेक्ट वीसी से आता है. वीसी पता हो तो सिंपल 3b इज वीसी. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कांस्टेंट ए. एक्सप्रेशंस ये होते हैं, टीसी का एक्सप्रेशन होता है 8a/27rb and the expression for PC is a/27b square. We have to calculate the van der Waals constant A. पहले हम रेशो लेते हैं TC/PC. Let's see what are the parameters which are getting cancelled. 8a/27rb and this is a/27b square. तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, एक b कैंसिल होगा, एक b. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं. टीसी की जगह मैं लिख रही हूं 282 और वो है 50. दिस इज इक्वल टू 8b/r. कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हेयर? r को पुट कर देंगे 0.0821, b आ जाएगा 0.0578 लीटर पर मोल. अब आप a निकाल सकते हो. अल्टीमेटली a निकालना था, इसके अंदर पुट कर देते हैं टीसी के अंदर. TC is equal to 8a/27rb और हमें TC का वैल्यू पता है. TC का वैल्यू है क्या? 282. This is 282 and A can be calculated divided by 27 into एटमॉस्फेयर में 0.0821 and B का वैल्यू है 0.0578. In this manner we can calculate the van der Waals constant A. 4.5 आएगा एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. 4.5 इट मीन्स बी, सी ऑप्शन. सो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपको टीसी पीसी वीसी प्रोवाइड करेंगे. कभी कहेंगे ए निकालो, कभी कहेंगे बी निकालो. ये इंपॉर्टेंस है van der Waals कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्रिटिकल पैरामीटर्स की. मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द van der Waals कांस्टेंट ए फॉर अ गैस इज गिवन 4.42 सेंटीलीटर पर मोल. यूनिट्स हैं सेंटीलीटर्स पर मोल. हाउ नियर कैन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर? देखिए van der Waals कांस्टेंट बी क्या होता है? 4 times the volume occupied by molecules in 1 mole. ये होता है van der Waals कांस्टेंट बी. हमें अगर रेडियस पता चल जाए, यहां से रेडियस पता चल सकता है ना, क्योंकि हमें आप ये बी पता है, रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे. फिर पूछा है हाउ नियर द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर. दोनों मॉलिक्यूल कितना पास पास आएंगे वो हम कर देंगे ट्वाइस ऑफ देयर रेडियस. जैसे कि एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, तो कोलाइड भी कर जाएं अगर, तो भी आप ये कहोगे कि दो रेडियस अगर ले लिए जाएं विच इज एक्चुअली डायमीटर, दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर. राइट, तो यूनिट्स का लिए देखना पड़ेगा. बी के यूनिट्स दिए 4.42 सेंटीलीटर पर मोल. इस को आप 10⁻⁻² कर दो ताकि लीटर्स बन जाए, और फिर हमें मिलीलीटर बनाना है. मिलीलीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब. हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब पर मोल बन गया, विच इज इक्वल टू 44.2 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आर बी, ये जो रेडियस है उसका वैल्यू सेंटीमीटर्स में आएगा. तो B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 πr³ इंटू एवोगैड्रो नंबर, and this is equal to 44.2. we can find out r from here. pi का वैल्यू 3.14. पहले r³ होगा, अल्टीमेटली क्यूब रूट लेना पड़ेगा, and we have to solve for r, and the value of r comes out to be 16.39 into 16.36 into 10⁻⁹ centimeter. As a result, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना था. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू 2r.
it is equal to 2r. So it is 2 into 16.36 into 10 raised to power minus 9. ये डबल हो जाएगा 32.72 into this minus 9 centimeter. Can it be written as 327.2 picometers? पिकोमीटर होता है 10 raised to power minus 12 meters, और you can call it 10 raised to power minus 10 centimeter. आंसर है ऑप्शन सी. 1 पिकोमीटर इज 10 raised to power minus 10 centimeters. तो इस तरीके से हमने इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. Let's move to the next now. Question number 17th. For carbon dioxide, critical density is given 0.45 gram per cc and critical temperature is also given. What is its van der Waals constant A? क्रिटिकल डेंसिटी दी है, तो क्या हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी से? मास है 44, CO2 गैस दी है और डेंसिटी है 0.45, क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया, TC आपके पास दे रखा है 300 एंड अल्टीमेटली हमें A कैलकुलेट करना है. van der Waals कांस्टेंट A इज टू बी कैलकुलेटेड, राइट? तो VC होता है 3B, 3 टाइम्स ऑफ B इज VC. तो सबसे पहले हम B निकाल देंगे. van der Waals कांस्टेंट A निकालना है बट पहले B कैलकुलेट होगा. इट विल बी VC अपॉन 3 एंड वॉल्यूम कितना है 44 अपॉन 0.45 इंटू 3. यहां से B निकलेगा. अल्टीमेटली आपको A चाहिए. TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ B इन दिस एक्सप्रेशन. TC का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन है क्रिटिकल टेम्परेचर, 300 केल्विन. इट इज इक्वल टू 8 इंटू A अपॉन 27. R का वैल्यू हम पुट करेंगे और B की जगह लिखेंगे 44 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 3 and hence A will come out to be 2.7 atmosphere liter square per mole square. 2.7 atmosphere liter square per mole square means B option. Let's move to the next question now. So the question is, if a real gas following PV minus NB is equal to nRT at low pressure, then the intercept and slope of the graph between D upon P versus P are respectively. दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप. अलग अलग ऑप्शंस दे रखी हैं. ग्राफ बनेगा D अपॉन P वर्सेस P. तो देखिए P इंटू V माइनस NB, इसको हमें अल्टीमेटली डेंसिटी की टर्म्स में लिखना है क्योंकि D अपॉन P का ग्राफ चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज गिवन मास अपॉन मोलर मास. If I divide by volume divide by V on both sides, हर टर्म को आप V से डिवाइड करो तो ये बन जाता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, फिर मोलर मास डिनोमिनेटर में. दिस इज इक्वल टू W by V into mRT, right? So P into 1 plus mass upon volume is density. ये दोनों तरफ हमारी इक्वेशन में D बन गया. This is equal to dB upon m and it is equal to dRT upon m. तो अब हम LCM ले लेते हैं. m अल्टीमेटली ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाती है. This is equal to dRT. m और m को डिनोमिनेटर में हमने कैंसिल कर दिया. So P को राइट पे ले जाइए. m अपॉन RT माइनस dB अपॉन RT इज इक्वल टू D अपॉन P. ग्राफ चाहिए D अपॉन P वर्सेस प्रेशर के अंदर. सो हमारी इक्वेशन ये फॉर्म ले चुकी है m अपॉन RT माइनस dB अपॉन RT. तो अब हम क्या करते हैं, लेट D अपॉन P इज Y एंड प्रेशर इज X. तो आपके इक्वेशन में लेफ्ट पे है y इज इक्वल टू m अपॉन RT माइनस B अपॉन RT इंटू XY. ये देखिए हमने डेंसिटी को XY कैसे लिखा, X इज प्रेशर एंड Y इज D अपॉन P. तो डेंसिटी आ गया इक्वल टू XY, राइट? तो ये इक्वेशन में आप y लिख चुके हो. y इज इक्वल टू m अपॉन RT माइनस B अपॉन RT इंटू XY. वी कैन राइट द कॉमन टर्म्स ऑन सेम साइड. B अपॉन RT, XY को मैंने लेफ्ट पे कर दिया और m अपॉन RT राइट पे है. और अब हमने
y लिया कॉमन, दिस इज 1 प्लस बी एक्स अपॉन आर टी इज इक्वल टू m अपॉन आर टी, राइट। तो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चाहिए, वी कैन से फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, x की टर्म 0 कर दो तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m अपॉन आर टी। ये एक आंसर आ गया इंटरसेप्ट का। उसके बाद स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये y की वैल्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए और ये बन जाएगा माइनस एम बी अपॉन आर टी स्क्वायर। It is minus mb upon rt square you will get after differentiating। तो एक चीज इंटरसेप्ट और एक स्लोप निकालनी थी, ये आंसर है ऑप्शन बी। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन d अपॉन p वर्सेस p, राइट। सो वही वंडरवॉल इक्वेशन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके आपको कभी कहते हैं कि ग्राफ का इंटरसेप्ट बताइए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अलग अलग पैरामीटर्स में हम प्लॉट करते हैं एंड इवन समटाइम्स a इज टू बी कैलकुलेटेड, समटाइम्स b इज टू बी कैलकुलेटेड। उसके लिए हमें क्रिटिकल पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आफ्टर 18th, नेक्स्ट इज 19th। The van der Waals constant A of carbon dioxide is greater than H2. It means that strength of van der Waals force of carbon dioxide is less than that of H2, or strength of van der Waals force of carbon dioxide is equal to that of H2, or carbon dioxide can be more easily liquefied or H2 can be more easily liquefied। ये आंसर बनेगा ऑप्शन सी। जिसका van der Waals कांस्टेंट A हाई होता है उसके अंदर बॉन्ड्स जल्दी से बनते हैं। हायर A मीन्स मोर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस, वो जल्दी से बॉन्ड बना लेता है। मोर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस का क्या मीनिंग है? इट मीन्स दैट मोर इज, या इजियर लिख देते हैं, इजियर इज द लिक्विफिकेशन। इट इज इजी टू लिक्विफाई द गैस, इजियर इज द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। तो आंसर है फॉर 19th क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन। If the slope of z versus p curve is constant and slope is equal to pi upon 492.6 atmosphere inverse at a particular temperature of 300 Kelvin and very high pressure, then the diameter of the molecules you have to calculate। Look here, क्या क्या दिया है हमें? z versus p ग्राफ, z होता है 1 plus pb upon rt। ये आपको पता है जो हमारा एक्सप्रेशन है van der Waals इक्वेशन का, विच इज इक्वल टू P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम अल्टीमेटली यहां तक ले आते हैं बाय डिवाइडिंग विद आर टी ऑन बोथ साइड्स। आप आर टी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अब ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है Z वर्सेस प्रेशर। ये है आपका y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट mx, प्रेशर राइट पे दिया हुआ है, ये स्लोप बन गया। स्लोप आ चुका है इक्वल टू b अपॉन आर टी एंड स्लोप कितना है? इट इज पाई अपॉन 492.6, पाई अपॉन 492.6 इज इक्वल टू b अपॉन आर टी। फाइंड आउट हाउ मच क्लोज दे कैन। तो पहले हमें डायमीटर से पहले तो b मिलेगा, van der Waals कांस्टेंट b। टेम्परेचर क्वेश्चन में 300 केल्विन है, r का वैल्यू हम जानते हैं, b कैलकुलेट करेंगे, b विल कम आउट टू बी इक्वल टू, इट विल बी पाई आर टी अपॉन 492.6। अब ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स r एंड टेम्परेचर, राइट। सो ये 4 into 4/3 pi r cube into Avogadro number, 4 times the volume occupied by molecules in 1 mole, and we can put pi value, we can put the value of r and temperature है, चेक करो 300 ही था and 492.6। एक बारी हम फिर से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, yes it was 300 and b वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि रेडियस आ सके। 4 into 4/3 pi r cube into एवोगैड्रो नंबर लिया, रेडियस आ जाएगा 2.5 एटमॉस्फेयर। देन द डायामीटर विच इज डबल ऑफ द रेडियस, डायामीटर इज 2 into 2.5 मतलब इट इज 5 एंगस्ट्रॉन।
5 एंगस्ट्रॉन इज द आंसर। ये आंसर आ रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ वॉज बिटवीन Z वर्सेस प्रेशर। That is all about the lecture. We have learnt about van der Waals equation mainly in this video and the difference between real and ideal gas. आइडियल गैस वो है जो हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे PV इज इक्वल टू nRT फॉलो करेगी, बट रियल गैस नहीं करेगी। पर्टिकुलरली जब जब प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर लो होगा तो डेविएशंस आएंगी। बट अगर ऑपोजिट कर दें, कहने का मतलब अगर हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कर दें तो आइडियल बिहेवियर के क्लोज रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और ये van der Waals इक्वेशन आपने हाई प्रेशर पे क्या फॉर्म लेती है, लो प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे, सब कंडीशंस पे आपने इसको देखा। सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके यूनिट्स किस कॉन्सेप्ट को वो सिग्निफाई करते हैं एंड आफ्टर दैट इन van der Waals कांस्टेंट ए और बी के साथ रिलेटेड है क्रिटिकल पैरामीटर्स, जिसमें कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करना है तो आइडियल बिहेवियर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विफिकेशन का मतलब है बॉन्ड बनने चाहिए। आइडियल गैस का मतलब है मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ना बने। लिक्विफिकेशन उससे ऑपोजिट है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्रिएट होनी चाहिए, बॉन्ड्स क्रिएट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बॉन्ड कब क्रिएट होता है, जब हम हाई प्रेशर देते हैं और लो टेम्परेचर देते हैं, राइट। तो गैसेस के बारे में हमने 3 वीडियोस के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आइडियल गैस से लेके लास्ट में क्रिटिकल पैरामीटर लिक्विफिकेशन तक कवर अप किया है। एंड कीप रिवाइजिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।